Class 10 Economics, Class 10 Economics, Class 10 अर्थशास्त्र Chapter 1, Development Vikas, Part 1. Notes for teachers. Development has many aspects. Development has many aspects. The purpose of this chapter is to enable a student to understand this idea. They have to understand that people have different perspective on development, and there are ways by which we can arrive at common indicators for development. To do this, we have used situations that they can respond to in an intuitive manner. We have also presented an analysis that is more complex and macro in nature. देखिए, विकास के कई पहलू हैं। विकास के कई पहलू। इस अध्याय का उद्देश्य विद्यार्थियों को यही विचार समझाना है। उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि लोगों की विकास के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं और ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम विकास के सामूहिक सूचकांकों को जान सकते हैं। इसके लिए हमने ऐसी स्थितियों का प्रयोग किया है जिन पर वे सहज बुद्धि से प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। हमने ऐसे विश्लेषण भी दिए हैं जिनकी प्रकृति ज़्यादा जटिल और वृहद है। आगे हम देखिए, हाउ कैन कंट्रीज और स्टेट दैट कंपेयर यूजिंग सम सेलेक्टेड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज अनदर हाउ कैन कंट्रीज और स्टेट्स बी कंपेयर यूजिंग सम selected development indicators is another question that students would read about in this chapter. Economic development can be measured, and income is the most common method for measuring development. However, the income method, though useful, has several weaknesses. Hence, we need newer ways of looking at development using indicators of quality of life and environmental sustainability. देखिए, दूसरा प्रश्न आपको देखिए, आपके यहाँ पर है क्या? दूसरा प्रश्न यह कि देशों और राज्यों की तुलना कुछ चयनित विकास सूचकांकों के आधार पर कैसे की जा सकती है। इस अध्याय में विद्यार्थी इसका अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास को मापा जा सकता है और आय इसे मापने की एक विधि है। यद्यपि आय के द्वारा विकास मापने की विधि उपयोगी है, इसके कुछ दोष भी है। इसलिए हमें जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारणीयता जैसे नए सूचकांकों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। आगे देखिए, it is necessary for you to expect the student to respond actively in the classroom and on a topic such as the above. There would be wide variation in opinion and possibility of debate. Allow a student to argue their point of view. At the end of each section, there are a few questions and activities. These serve two purposes. First, they recap the ideas discussed in section, and second, they enable better understanding of the themes discussed by bringing the learners closer to their real life situation. आगे यहाँ पर कहा गया क्या? देखिए, आपके लिए अपेक्षा करना आवश्यक है कि विद्यार्थी उपयुक्त विषय पर कक्षा में सक्रिय प्रतिक्रिया दिखा। इस विषय पर विद्यार्थी की राय में काफ़ी अंतर हो सकता है और इस पर विवाद होना भी संभव है। विद्यार्थियों को अपने अपने दृष्टिकोण रखने दीजिए। हर खंड के अंत में कुछ प्रश्न और क्रियाकलाप दिए गए हैं। इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, वे इस भाग में चर्चित विचारों को संक्षेप में बताते हैं। इस भाग में चर्चित विचारों को संक्षेप में बताते हैं और दूसरा, वे विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक जीवन परिस्थितियों के निकट लाकर इन विषयों को बेहतर तरीके से समझने के योग्य बनाते हैं। आगे यहाँ पे आपको कहा गया, There are certain terms used in this chapter that would require clarification. Per capita income, literacy rate, infant mortality rate, attendance ratio, life expectancy, gross enrollment ratio, and human development index. Though data pertaining to
to these terms are provided. These would need further explanation. You may also need to clarify the concept of purchasing power, purchasing power parity that is used to calculate per capita income in table 1.6. It is necessary to keep in mind that these terms are used as an add to the discussion and not something to be memorized. देखिए इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर। देखिए यहाँ पर जो कहा गया आय, आपको यहाँ पर हो गया क्या कि रेट पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जिसे बोलते हैं। लिटरेसी रेट मतलब आपको साक्षरता दर हो गया। उसके बाद आपको देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब आपको होता है शिशु मृत्यु दर आपको हो गया। फिर उसके बाद देखिए अटेंडेंस रेशियो उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा जिसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जिसको बोलते हैं सकल नामांकन अनुपात और मानव विकास सूचकांक। देखिए इन शब्दों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं तथा इन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए इनका विस्तार से अध्ययन आवश्यक है। आपको क्रय शक्ति क्षमता की अवधारणा को भी स्पष्ट करना होगा जिसका तालिका 1.6 में प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए प्रयोग किया गया। यह आवश्यक है कि इन शब्दों का प्रयोग चर्चा में सहायता के लिए किया जाए, ना कि उनको कंठस्थ करने के लिए। आगे यहाँ पर कहा गया है क्या कि सोर्स फॉर इन्फॉर्मेशन, देखिए सूचना के जो स्रोत हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोर्स फॉर इन्फॉर्मेशन, सूचना के जो आपको स्रोत हैं उनको यहाँ पर आप देखिए। इसमें जो आपको कहा गया देखिए द डाटा फॉर दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। Many of these reports are being published every year. It may be interesting to look up these reports if they are available in your school library. If not, you may log on to the website of the institution www.budgetindia.nis.in, www.undp.org, www.worldbank.org. Data is also available from the Reserve Bank's Handbook of Statistics on Indian Economy, available at www.rbi.org. देखिए इस अध्याय के आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट और विश्व विकास सूचकांक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से लिए गए हैं। ये रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं। यदि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में ये रिपोर्टें हैं तो इन्हें देखना अच्छा होगा। अगर नहीं तो आप इन संस्थानों की वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.budgetindia ये सब को। और आंकड़े भारत रिजर्व बैंक की हैंडबुक स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमीज में भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको www.rbi.org वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ ये जो था ये आपको टीचरों के निर्देश था। अब हम यहाँ पर आते हैं चैप्टर 1 विकास की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 में जो आपको अध्याय 1 जो आपके यहाँ पर विकास है उनकी कुछ बातें आपको यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको विकास की जो कुछ बातें आपको यहाँ पर कही गई, एक इमेज यहाँ पर शो किया। देखिए विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप। देखिए यहाँ पर कहा बहुत अच्छा इमेज यहाँ पर शो किया गया है विदाउट मी। देखिए विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप एंड इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। देखिए मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। यहाँ पर कहा गया देखिए विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। आगे यहाँ पर कहा गया देखिए द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। देखिए द आइडिया ऑफ यहाँ जो कहा गया द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पायरेशन और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, can there be more quality, then can there be more equality, development involves thinking about this question and about the ways in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development.
You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answer to many of these questions, not just in economics but also in your course in history and political science and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. यहाँ पे जो कहा गया, देखिए विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। विकास और देखिए यहाँ पे जो कहा गया, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षा और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई के देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है। देखिए, यह काम जटिल और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशा और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे एक आपको कुछ दिया गया, इसमें देखिए व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेज डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि विकास क्या वादा करता है विभिन्न व्यक्ति, आपको देखिए विकास क्या वादा करता है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य की बात यहाँ पर कर रहा है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन, देखिए लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस is likely to mean to different person listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. They and try to complete the table. You can also add any other category of persons. देखिए, हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, कि उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या कि आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यू वांट ए कार। यहाँ पर अच्छा आपको दिया गया एक कार्टून यहाँ पर आपको है। देखिए, you want a car, the way our country is set up, all you can hope for is maybe to one day on the rickshaw you pull. देखिए, you want a car, the way our country is set up, all you can hope for is maybe to one day on the rickshaw you पुल। ये कहता है क्या कि देखिए, तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उससे तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए टेबल 1.1 की थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। टेबल 1.1 में जो आपको यहाँ पर चीज़ें कही गई उसको आप यहाँ पर देखिए। टेबल 1.1 में थोड़ा सा इसको तालिका 1.1 में कहा गया, देखिए डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, ऑफ कैटेगरी जो यहाँ पर कहा गया। देखिए टेबल 1.1 में कैटेगरी ऑफ पर्सन इज वन कॉलम एंड डेवलपमेंटल गोल्स या एस्पायरेशंस। देखिए लैंडलेस रूरल लेवर्स की क्या हो सकता है। देखिए आपको मोर डेज ऑफ वर्क यहाँ पर जो कहा गया, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेज, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए क्या होगा, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक
भेदभाव नहीं, और गाँव में वे भी नेता बन सकते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए प्रोस्पिरस फार्मर, देखिए प्रोस्पिरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, प्रोस्पिरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, इनका क्या गोल है। देखिए यहाँ पे ये चाहते हैं कि एस्योर, देखिए आपको एस्योर्ड ए हाई फैमिली, यहाँ पर जो ये जो चाहते हैं, देखिए एस्योर, देखिए यहाँ पे एस्योर ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट हायर सपोर्ट प्राइसेज फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड। यहाँ पर देखिए इनका क्या गोल हो सकता है, पंजाब के समृद्ध किसान का क्या गोल हो सकता है, किसानों को देखिए यहाँ पर क्या, किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मौजूदा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बचा सके। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए आगे यहाँ पर आपको कहा गया कि फार्मर्स, देखिए फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उनके लक्ष्य लिखना है। देखिए किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं। ए रूरल वुमेन, देखिए ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, देखिए भूस्वामी परिवार की, देखिए भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। फिर आगे यहाँ पर कहता है क्या, देखिए अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की बात की गई है। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, यहाँ पर कहा गया है। ये देखिए ए बॉय फ्रॉम ए रिच, ए अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, देखिए शहरी बेरोजगार युवक है। फिर ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, देखिए शहर के अमीर परिवार का एक लड़का है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए कि ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, यहाँ पर देखिए शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, यहाँ पर कहा गया है। देखिए सी गेट्स, यहाँ पे देखिए कहा गया कि सी गेट्स हैज़ मच फ्रीडम हैज़ हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रोड। यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए उसने अपने भाई के जैसी उसे अपने, देखिए यहाँ पर इसके बारे में आपको कहा गया था क्या, कि शहर के अमीर परिवार की एक लड़की क्या सोचती है। देखिए उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वो अपने फैसले खुद कर सकती है, वो अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, देखिए एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, देखिए नर्मदा घाटी के एक आदिवासी, इन सभी का अपना लक्ष्य, अपना गोल होता है। अब आगे यहाँ पर कहता है क्या, हैविंग फील्ड टेबल 1.1 लेट अस नो, यहाँ पर देखिए क्या हैविंग फील्ड, देखिए यहाँ पर क्या है कि हैविंग फील्ड टेबल 1.1 लेट अस नो एग्जामाइन इट, डू ऑल दी, देखिए डू ऑल ऑफ दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट for them, that which can fulfill their aspiration or desires. In fact, at times two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. A girl has much freedom and opportunity has her brother, and that he also share in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt. The lives of people who are displaced, such as travelers. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. So two things are quite clear. One, different person can have different developmental goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. देखिए what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive. For the other. देखिए those people don't want to develop, ये यहाँ पर कहा गया।
अब इसमें थोड़ा सा ये देखिए क्या कि तालिका 1.1 को भरने के बाद इसका निरीक्षण करते हैं। तालिका 1.1 को भरने के बाद इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों के विकास की या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, यही आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए। जैसे कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। हाँ, इस तरह दो बातें आपको साफ इस तरह आपको दो बातें आपको साफ है। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के विकास ना हो। एक के लिए देखिए दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के विकास ना हो। यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकते हैं। देखिए इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते। यहाँ पर ये कहता है, इसको देख कर इस तरह के लोग आपको विकसित होना नहीं चाहते। देखिए दोज पीपुल डोंट वांट टू डेवलप। आगे यहाँ पर आपको जो चीज़ें आपको दिया गया, देखिए इनकम एंड अदर गोल्स की बात करते हैं। देखिए इनकम एंड अदर गोल्स मतलब आय और अन्य लक्ष्य की बात कर लीजिए। देखिए आय एवं अन्य लक्ष्य की बात कर, देखिए यहाँ पर क्या कि इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग व्हाट पीपुल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेज एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स ऑन अदर। देखिए और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। यहाँ देखिए अगर आप एक बार फिर तालिका 1.1 को देखें तो एक बात सामने पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों की अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में ज़्यादा आय चाहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए बिसाइड seeking more incomes one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption. Because material goods are not all that you need to live. देखिए मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. देखिए if it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. आप अगर एक बार तालिका 1.1 देखें तो आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बार समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में ज़्यादा आय चाहते हैं। देखिए किसी भी तरह के ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया
क्योंकि जीने के लिए सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही आपको पर्याप्त नहीं होती। यहाँ पर जो इसको अंग्रेजी में हम बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। आप देखिए मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट ईच, देखिए ईच वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. देखिए किसी भी तरह से ज़्यादा आप चाहने के अतिरिक्त, किसी भी तरह ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पर हमेशा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी वह अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको देखिए कि आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। तो यहाँ एक इमेज आपको शो किया गया है। ये इमेज यहाँ पर आपको देखिए कि देखिए ये डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग्स अगेंस्ट द रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। यहाँ पर आपको कहा गया देखिए क्या कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध यहाँ पर प्रदर्शन का एक इमेज यहाँ पर शो आपको किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पर आपको है however it will be, देखिए यहाँ पर क्या है कि however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। एक उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है, देखिए however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। Consider another example। यहाँ पर आपको कहा गया कि यहाँ पर देखिए, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर काले देखिए एक उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको बेहतर वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो कहा है कंसिडर अनदर एग्जाम्पल इफ़ यू, यहाँ देखिए क्या इफ़ यू गेट ए जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, देयर फॉर देखिए बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच हैज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफियर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इन अनदर केस ए जॉब may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. आगे यहाँ पर देखिए जो आपको कहा गया कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। देखिए सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन
working outside. A safe and secure देखिए, a safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. यहाँ देखिए क्या है कि इसी तरह विकास के लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर और समाज उनका आदर बढ़ता है। यद्यपि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। ये सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है। सुरक्षित और सुरक्षित व्यापार के सुरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियों या व्यापार कर सकती है। आपको कर सकती है। ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। देखिए, सुरक्षित और वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां व्यापार कर सकती है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। आगे देखिए क्या है, हैंस द डेवलपमेंट। देखिए हैंस द डेवलपमेंट गोल्स developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. आगे देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए यहाँ पर लेट्स वर्क दिस आउट यहाँ पर कहा गया कि देखिए लेट्स वर्क दिस आउट। देखिए देखिए आओ इन पर विचार करते हैं। देखिए लेट्स वर्क आओ इन पर विचार करते हैं, आओ इनको हल करने का प्रयास हम करते हैं। यहाँ पर जो आपको कहा गया इसको थोड़ा सा देखिए। व्हाट डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई। देखिए पहला, बिकॉज पीपुल आर डिफरेंट, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। सेकेंड, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। First, people have different developmental goals. Second, people have conflicting developmental goals. देखिए पहला देखिए यहाँ पर क्या अलग अलग लोगों की विकास धारणा अलग अलग क्यों है। अलग अलग लोगों की विकास धारणा अलग अलग क्यों है। नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों। देखिए पहला जो यहाँ पर कहा क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। दूसरा, क्या भिन्न दो कथनों का एक अर्थ है, कारण से उत्तर दीजिए। देखिए लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया है, देखिए क्या कि पीपुल्स, देखिए लोगों के विकास के लक्ष्यों पर विरोध होता है। पीपुल हैव कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, मतलब लोगों के विकास के लक्ष्यों पर विरोध होता है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब देखिए तीसरा यहाँ पर कहता है क्या, गिव सम एग्जाम्पल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। और आप देखिए कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। आगे यहाँ पर कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट की बात आपको की गई। देखिए राष्ट्रीय विकास की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि राष्ट्रीय इफ हैज वी हैव सीन अबव, इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। यहाँ पर देखिए क्या हैज इफ, देखिए यहाँ पर जो खास बात आपको कही गई है हैज, देखिए इफ हैज वी हैव सीन अबव, इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया should do for development। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणाएं भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that
that different person like different person could have different as well as conflicting notion of a country's development। यहाँ पे जो आपको कहा गया देखिए कि हाँ संभव है कि कक्षा के देखिए यहाँ पर संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने देखिए यहाँ पर जो कहा गया संभव है कि एक मिनट देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग उत्तर आपको दिए होंगे। हो सकता है कि आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है परस्पर विरोधी हो सकती है। आगे देखिए हाउ एवर कैन ऑल द आइडियाज बी देखिए यहाँ पर हाउ एवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर इक्वली इम्पोर्टेंट और इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। देखिए वी आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। लेकिन क्या यहाँ पर जो कहा गया देखिए लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों को विचार करना है। तो फिर आगे आपको यहाँ पर कहा जाता है डेवलपमेंटल गोल्स यहाँ पर होगा उसका देखिए लेट्स वर्क दिस आउट्स। यहाँ पर जो आपको कहा गया लेट्स वर्क दिस आउट देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा कीजिए आओ इन पर विचार करते हैं इन चीज़ों पर थोड़ा सा आप यहाँ पर विचार कीजिए लेट्स वर्क दिस आउट आओ इनका काम करते हैं इन पर काम करते हैं इन पर विचार करते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। निम्नलिखित स्थितियों पर आपको चर्चा करना है। पर लुक एट देखिए यहाँ पर जो कहा गया लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया। दाहिने और दिए गए चित्र को देखिए इस प्रकार के चित्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। यह जो आपको दाहिने और जो चित्र आपके यहाँ पर है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। देखिए इन अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको आगे यहाँ पर कहा था ए वेसल डंपेड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप्स इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी। दिस हैपन इन अ सिटी कॉल्ड अबीदजान इन आइवरी कोस्ट ए कंट्री इन अफ्रीका। The fumes from the highly toxic waste fumes from the highly toxic waste cause nausea, skin rashes, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptoms of poisoning। यहाँ देखिए एक जहाज ने ये देखिए यहाँ पर क्या एक वेसल डंप एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबीदजान शहर में हुआ। यह इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों में जी मिचलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। एक महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया।
आगे यहाँ पर आपको कहा गया देखिए ए मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम ए मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship। यहाँ देखिए पेट्रोल और धातु संबंधी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। देखिए हु आर द पीपुल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। देखिए किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं हुआ। आगे देखिए व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर दिस कंट्री। इन देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। आगे कहा था कि व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज टाउन और लोकेलिटी। आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाकों के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, यहाँ पर आपको आगे एक फिर आपको दिया गया बॉक्स क्रियाकलाप 1 में देखिए एक्टिविटी 1 की जो बात यहाँ पर आपको की उसको यहाँ पर देखिए। एक्टिविटी 1 में यहाँ पर देखिए इफ है, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1 इफ इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स डेवलपमेंट कैन बी वेरिड एंड कन्फ्लिक्टिंग देन सर्टनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग। इफ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी ट्राई टू फाइंड आउट आर्गूमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट पीपल। यू मे डू सो बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पर्सन और यू मे फाइंड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। देखिए यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भिन्नताएं हो सकती है। देखिए यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं। देखिए आगे आपके यहाँ पर आपको है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। देखिए देखिए यहाँ पर कहा गया कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आगे यहाँ पर आपको कहा गया है कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। आप पूछ सकते हैं देखिए यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। हाउ कम some countries are generally called developed and other underdeveloped। Before we come to this let us consider another question। देखिए आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। देखिए when we compare different things यहाँ पे जो कहा गया when we compare different things they could have similarities as well as differences। which aspect do we use to compare them। let us look at a student in the class itself। how do we compare different students। they differ in their height, health, talents and interest। the healthiest student may not be the most studious one। the most intelligent student may not be the friendliest one। so how do we compare students। the criterion we may use depends on the purpose of comparison। यहाँ पे जो आपको कहा गया जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानता है तो उसमें समानता और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं कि हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। उनमें ऊंचाई स्वास्थ्य प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा।
वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद, देखिए यहाँ पर क्या है कि खेल कूद, टीम वाद विवाद, टीम संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। यहाँ पर देखिए जो कीजिए कहा गया, देखिए देखिए यहाँ पर वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन to choose a sports team, a debates team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-round progress of children in the class, how shall we do it? Like usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on these characteristics. देखिए यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेज अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपेरिजन। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर, यहाँ पर जो आपको कहा गया क्या कि सामान्यतया हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने को उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक, उन्हें कम आय वाले देश से अधिक विकसित समझा जाता है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, कंट्रीज विथ हायर इनकम्स higher incomes more developed than other with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings needs. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. यहाँ पर जो देखिए आपको कही उसको थोड़ा सा देखिए, उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ये देखिए यही समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य से समझा जाता है। यहाँ पर देखिए कहा क्या है कि नो व्हाट इज द, देखिए नो यहाँ पर जो कहा गया, देखिए नो व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री। इनिट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए अब एक देश की आय क्या है, अंतर्दृष्टि से, देखिए अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। अब आगे देखिए हाउएवर, देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, किसी देश की या उसके देश के सभी नागरिकों की आय है। हाउएवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। आर पीपुल इन वन कंट्री बेटर
better off than others in a different country. Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. यहाँ पर जो आपको कहा गया, लेकिन देशों की तुलना करने के कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। मतलब औसत आय जो है वह देश की कुल जनसंख्या को देश की कुल औसत आय जो है निकाली जाती है, वह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर निकलती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा, देखिए औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। यहाँ आप आगे कहते हैं कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग countries with per capita income of US $49,300 per annum and above in 2019 are called high income or rich countries, and those with per capita income of US $2,500 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2019 was just $6,700 per annum US dollar per annum. The rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. आगे यहाँ पर आपको कहा गया है, देखिए विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का, देखिए आपको क्या देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय आपको US 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय आपको $995 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत आपको देखिए भारत मध्य आय वाले देशों में आता है, आपको आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1820 प्रति व्यक्ति थी। क्योंकि भारत मध्यम आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आपको हो गई। यहाँ पर एक आपको एवरेज इनकम को जो कुछ खास बातें कही गई है, वो हम ये जो आपको एवरेज इनकम जिसको हम औसत आय बोलते हैं, तो औसत आय से रिलेटेड कुछ बातें जो आपके यहाँ पर आपको कही गई थी कि औसत आय, उसको हम अगले वीडियो में आपको देखेंगे, एवरेज इनकम जो आपके यहाँ पर है।